Channel Y. Channel Y. A South Asian Canadian channel. Online, SouthAsianDaily.com. The biggest South Asian media group. Y Media. You are watching Channel Y. Channel Y. A South Asian Canadian channel. The biggest South Asian media group. Y Media. Y Media. Y Media has newspaper, midweek, radio, South Asian Pulse, television. You are watching Channel Y. Channel Y. A South Asian Canadian channel. Online, SouthAsianDaily.com. The biggest South Asian media group. Y Media. You are watching Channel Y. Channel Y. The biggest South Asian media group. Y Media. Y Media. Y Media has newspaper, midweek, radio, South Asian Pulse, television. You are watching Channel Y. Channel Y. A South Asian Canadian channel. Online, SouthAsianDaily.com. The biggest South Asian media group. Y Media. You are watching Channel Y. Channel Y. A South Asian Canadian channel. This part of the program is brought to you by Midweek Newspaper, published every Tuesday. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੂਰ ਹੈਲਥ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟਿਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਤੇ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਬਰ ਖਾਲਿਦ ਜੀ ਅਤੇ ਮਨਮੀਤ ਗਰੋਵਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਨਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। Thanks for having us. अंबर जी, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। आपको भी बहुत शुक्रिया मैं बुलाने का। हाँ जी, जिस तरह ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਰਡਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਕਰੋ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ। ਮਨਮੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? सब तो पहले इनू अंडरस्टैंड कर लेने, जो न्यूट्रिशन है वो साढ़े दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है मैक्रो, दूसरी माइक्रो। माइक्रो जिमें जो ज़्यादा अमाउंट से चाहिए, जिमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स से फैट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सानू घट अमाउंट ही चाहिए होते हैं पर तुहाडी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, जिमें वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, उन्होंने असीं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਗਰੋਥ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? अगर असी वाइटामिन्स नहीं लैंदे बॉडी के अंदर, सानू डेफिशिएंसीज हो सकती ने। वाइटामिन्स जो ने तुहाडी इम्यूनिटी, ग्रोथ वास्ते, हर चीज़ वास्ते इंपॉर्टेंट होंदे। सो अगर वाइटामिन्स और मिनरल्स प्रॉपरली नहीं लिते गए तो बॉडी के अंदर डेफिशिएंसीज हो सकती ने। अगर इन्होंने एक्सेस अमाउंट इच लिता जाए तो वो भी हार्मफुल हो सकता है। अच्छा जी, मतलब दोनों ही इंपॉर्टेंट जी, ते प्रॉपर डोज ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਬਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ, ਮਿਨਰਲਸ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਡਾਈਟ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੂਅਰ ਡਾਈਟ ਜਾਂ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ?
बिल्कुल इसका जवाब बिल्कुल इस तरह से है कि आर्टिफिशियल चीज़ खा के जिस्म को फ़ायदा दे दो, और जो चीज़ अच्छी क्वांटिटी में आपको नेचुरल फूड में मिल रही है आप वो ना खाएं। सप्लीमेंट्स में सारे विटामिन्स मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे लोगों का रिवाज है, उनको अच्छा लगता है खाना कि हम एक्स्ट्रा हेल्थ के लिए लें, लेकिन हमारी हमेशा रिकमेंडेशन होती है कि हेल्दी खाना खाएं, बैलेंस मील लें। अगर आपके खाने में सारे फूड ग्रुप्स हों, जब हमने पिछले बहुत सारे एपिसोड्स में हम ये बात कर चुके हैं कि दूध हो, थोड़ा फल हो, थोड़ी रोटी हो, साथ में 2 डिफरेंट कलर्स की सब्जियां हो और फिर कुछ प्रोटीन हो, तो आपको वो सारे विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाएंगे जो कि शीशी के अंदर आपको एक्स्ट्रा पैसे दे के खरीदने पड़ते हैं। और क्या डिफरेंस क्या होता है एब्जॉर्प्शन का, कि अगर आप नेचुरल सोर्स से लेते हो वर्सेस जो आप सप्लीमेंट लेते हो? नेचुरल सोर्स अगर खाने से लेते हैं, जैसे आप डेफिनेटली जो नेचुरल सोर्स से लेते हैं उसमें आपको जो विटामिन्स की फॉर्म मिलती है वो बिल्कुल नेचुरल है, बॉडी उसको बेटर रिकॉग्नाइज करती है, वो बॉडी में बेटर एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल विटामिन सप्लीमेंट्स हैं नॉट नेसेसरली वो इतने अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे, लेकिन फिर भी आई नो फार्मास्यूटिकल कंपनीज आर वर्किंग ऑन इट, वो बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स ही बन जाएंगे। लेकिन यह एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बताऊंगी कि अगर हम एक वेल बैलेंस मील लेते हैं रोज, जिसमें आप जैसे बात करिए सारी कैनेडाज फूड गाइड को फॉलो करते हैं आप, तो आपकी डाइट में मोर देन 50-55 मिनरल्स एंड विटामिन्स आ जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी सप्लीमेंट जो स्टोर बॉट सप्लीमेंट हैं, कितने भी ऑर्गेनिक और आप अच्छे से अच्छे ले लें, उसके अंदर आपको 40 से ज़्यादा मल्टीविटामिन्स नहीं मिलेंगे, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये फ़र्क आपके सामने है कि आपने कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा फ़ायदा दे रही है और कौन सी चीज़ आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं। तो आप बोल रहे हैं कि जो आप नेचुरल सोर्स से लेते हो वो आपके लिए बेहतर है, तो मतलब कि हेल्दी और बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप बोलते हैं कि जो सब्जियां हैं और जो फ्रूट्स होते हैं उनमें ये जो विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं वो अच्छी क्वांटिटी में आपको मिल जाते हैं। सब्जियां, फल, जितने भी अनाज हैं, सीरियल्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, उनके अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। दूध और दही के अंदर आपको कैल्शियम मिल जाता है। अगर खाने के अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन हैं नॉन वेज सोर्स से, वेज सोर्स से, जैसे दालें हैं, बीन्स हैं, या गोश्त आप किसी भी किस्म का चिकन फिश लेते हैं, तो ये सारे जो हैं इससे आपको विटामिन्स, मिनरल्स पूरी अच्छी कॉम्बिनेशन मिल रही होती है। तो हमारा मैसेज यही है, हम इसी चीज़ को प्रमोट करेंगे कि बैलेंस मील, सारे फूड ग्रुप्स हों खाने में, और वो आपको उस ट्रैक पे डालेंगे वेयर यू कैन गेट मोस्ट ऑफ द विटामिन्स एंड मिनरल्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर बॉडी, विद फ्यू एक्सेप्शंस, जो कि डेफिनेटली हम अभी अपने एपिसोड में इस पे और बात करेंगे। जी, और मैं दर्शकों को बताती चलूँ कि आप फ़ोन लाइंस खुली हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है न्यूट्रिशन से आप कॉल कर सकते हैं। और आज हमारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि रजिस्टर्ड डाइटिशियंस आपके सामने बैठे हैं, वो और आपके कोई भी क्वेश्चन हो उसको खुशी से आंसर करेंगे, तो प्लीज़ आप कॉल कर सकते हैं। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए मनमीत जी, बात आती है कि कुकिंग की, कि हम जब पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं या किसी को रेकमेंड करते हैं कि आप वेजिटेबल्स खाओ, फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मतलब कि उसको स्टीम करें या उसे कुक करें या उसे रॉ खाएं, कि वो उसके बारे में आप क्या बोलोगी? सो विटामिन्स हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, दूसरे फैट सॉल्युबल। जो वाटर सॉल्युबल हैं वो हैं बी, जितने भी B1, B2, B12 सारे, और जो विटामिन सी है वो भी वाटर सॉल्युबल है। जब हम कुकिंग करते हैं या ज़्यादा देर के लिए कुकिंग करते हैं तो ये जो विटामिन्स हैं ये ख़त्म हो जाते हैं उनके अंदर। तो जो बेस्ट मेथड है कि स्टीम करें, बॉईल करने की बजाय, वो बेस्ट मेथड है, उससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रिजर्व किए जा सकते हैं। जी, तो मतलब कि आपने स्टीम या फिर आप रेकमेंड करते हैं स्टीमिंग इज बेटर ओवर बॉइलिंग। सो ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਿਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ करिए तो फिर बताओ कि हमारी जो कम्युनिटी में कौन से विटामिन्स की कमी पाई जाती है? मोस्टली जो हमने अपनी प्रैक्टिस में ऑब्जर्व किया है, एंड मनमी डेफिनेटली उसमें ऐड करेंगी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हमें बहुत देखने को मिलती है अपने क्लाइंट्स में, विटामिन D की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, और उसके मुख्तलिफ कारण होते हैं। कभी उसका जो है वो डाइट ही प्रॉब्लम होता है कि डाइट इनफ नहीं है, और कभी उसके फर्दर एडवांस रीजंस हो सकते हैं।
मनमीत, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ जी, सो जो साडी कम्युनिटी है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ, B12, ਆਇਰਨ ਐਂਡ ਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ B12 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ B12 ਜੋ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਦਾ B12 ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ। ਜੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਾਮਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਮੋਸਟਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਧਰ ਵਿੰਟਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿੰਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜੀ ਪਾਉਂਦੀ, ਜੀ। तो ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ B12 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ And ਵਿੱਚ iron too. ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਤੇ ਡੀਟੇਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੇਬੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਇਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, B12 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਿੰਟਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਉਹ ਬਾਡੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਸੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਐਂਡ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਰ ਹੈਲਥ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ ਫॉर ਲਿਸਨਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ B12 ਉਦਾਂ ਹੀ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਵਾਂ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੰਬਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ? थैंक यू, आपने वाकई बहुत अच्छा सवाल पूछा है। B12 के जो मेन सोर्सेज हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो एनिमल सोर्सेज से आते हैं, जिसमें ज़ाहिर सी बात है मीट है, फिश है, लेकिन सोया प्रोटीन और सोया से बने हुए प्रोडक्ट्स में भी विटामिन B12 होता है। टू स्टार्ट सप्लीमेंट, आई थिंक आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया कि डॉक्टर से पहले अपना चेकअप करें, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मशवरा किए बगैर मैं किसी को भी एडवाइस नहीं करूँगी कि वो विटामिन सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर दे। तो उनका यही हम जवाब देना चाहेंगे। सॉरी, अब मैं आपकी बात बीच में कर रही हूं। हाँ जी मनमीत जी, आप क्या ऐड करेंगी? ਸੋ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ B12 ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ B12 ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਅਗਰ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਯੀਸਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 1 ਚਮਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਚਮਚ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਯੀਸਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.4 ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਾਮ B12 ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲ ਸੋਰਸਿਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਨੇ ਦੈਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਯੀਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਿੰਗ ਯੀਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਯੀਸਟ, ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਚਮਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 2.4 ਮਾਈਕਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੈਚੁਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਸਟੋਰਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਅਪਰੂਵਡ ਹੈਗੇ ਜੋ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ ਰੈੱਡ ਸਟਾਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੀਸਟ। ਸੋ ਫਾਰਮੇਸੀਜ਼ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਜੋ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 150 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਯੂ ਯੂ। ਵੈਲਕਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੋ ਗੁੱਡ ਜੌਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਵਰੀ ਮੰਡੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਰ ਹੈਲਥ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨ ਵੈਜੀ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਲਥੀ ਫੂਡ ਆ, ਪਰ ਵੈਜੀ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਰੈਸ਼ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਸ਼ ਖਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਲਥੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਹਤ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ,
ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਗੋਟ ਮੀਟ ਨਾਲ ਰੈਡ ਮੀਟ ਨਾਲ ਫਿਸ਼ ਖਾਣਾ ਹੈਲਥੀ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫਿਸ਼ ਖਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਮਨਮੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫਿਸ਼ ਖਾਣਾ ਹੈਲਦੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਰੈਡ ਮੀਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੈਡ ਮੀਟਸ ਨੇ, ਸੋ ਜੋ ਰੈਡ ਮੀਟ ਨੇ, ਚਿਕਨ ਹੈ, ਫਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰੈਡ ਮੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਫੈਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਫਿਸ਼ ਤੇ ਚਿਕਨ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੋ। ਫਿਸ਼ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਮੇਗਾ 3 ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਕਨ ਐਂਡ ਫਿਸ਼ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਨਸਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮਨਮੀਤ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਕਿਵੇਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮੇਜਰ ਹੈਲਥ ਕੰਸਰਨ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਫੋਰਟੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੱਪ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੱਪ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 45% ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਕੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਮਨ ਹੈ, ਬੀਫ ਹੈ, ਐਗ ਦੇ ਯੋਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜ਼ਰਦੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਗੇਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੰਬਰ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਨੇ, ਮਿਨਰਲਸ ਨੇ, ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ? नहीं, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ विटामिन्स तो ऐसे हैं कि अगर हम ज़्यादा लेते हैं, जैसे कि मनमीत ने शुरू में बताया था कि 2 तरह के होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स है अगर वो आप ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, बॉडी से निकल जाएगा जो हमने एक्स्ट्रा लिया। लेकिन अगर फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे विटामिन ए, डी, ई एंड के अगर आप ज़्यादा लेंगे तो उसके बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने के, जमा होने के और टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वाकई हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि एक चीज़ का फ़ायदा करते करते हम नुकसान कर दें। तो एडवाइस यही है कि कनेक्ट विद योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अपने डॉक्टर से कनेक्ट करो, जिस चीज़ की डेफिशिएंसी है उनके एडवाइस के अकॉर्डिंगली जो भी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है उस स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट का आप उतना ही लीजिए। जैसे अभी मनमीत ने बताया कि कितने लेवल के बाद इंजेक्शन की ज़रूरत है, कितने लेवल के बाद गोली की ज़रूरत है या सप्लीमेंट या डाइट में एक्स्ट्रा लेने की। तो इसीलिए ये आज का प्रोग्राम भी हमने थ्रो किया है कि आप हमसे पूछें, जो नंबर्स पे एक्शन लेना है वो हम आपको आज बता सकते हैं। जी जी, हम अभी नेक्स्ट कॉल की तरफ चलते हैं। हाँ जी, थोड़ा योर हेल्थ टीवी शो में स्वागत है जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, प्रोग्राम ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। थैंक यू वेरी मच। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਧ 4 ਕੱਪ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? हाँ जी मनमीत जी, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ? ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਅਗਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 4000 IU ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਜਾਂ 4 ਕੱਪ ਦੁੱਧ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣਾ ਅਗਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬਰਨ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਨੂੰ। हाँ जी, एम्बर देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पैरों में दर्द विटामिन डी की कमी की वजह से हो रहा है तो उसका बेस्ट यही कि पैरों के दर्द किसी और वजह से भी हो सकता है। आपके कैल्शियम का इंटेक हो सकता है, लेकिन आप दूध पी रहे हो इनफ क्वांटिटी में। समटाइम्स किसी और बीमारी की वजह से पैर में दर्द होता है तो उसका कारण हमेशा हम विटामिन डी या कैल्शियम से नहीं जोड़ सकते। तो आपने जाके पहली बात डॉक्टर से आप देखो, कांटेक्ट करो, सारे ब्लड वर्क कंप्लीट कराओ और फिर मैं चेकअप 6 महीने बाद कराਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। अच्छा, 6 महीने बाद अपना ब्लड वर्क कराते हैं। तो आपको पैरों में दर्द होता है इसलिए आप विटामिन डी और कैल्शियम एक्स्ट्रा ले रहे हो? नहीं, ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਐਕਸਟਰਾ? ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਐਕਸਟਰਾ?
ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਪਰ ਮਾ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਡਨੀ ਹਾਰਟ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਤੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ ਐਂਡ ਅਗਰ ਉਹ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर योर ਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਨੇ, ਮਿਨਰਲਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਲੱਡ ਵਰਕ ਕਰਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, थोड़ा योर हेल्थ टीवी शो ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैंने पूछना था, मेरा 58 इयर्स ओल्ड हूँ, मेरा आयरन लाइफ और बोर्ड से नीचे रहता है हर जी जी। तो आयरन पिल्स मैं ले नहीं सकता, उससे कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो कोई उसका अल्टरनेटिव है? हाँ जी मनमीत जी, इसमें आप क्या रेकमेंड करेंगी? आप वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है? आप चिकन वगैरह खाते हैं? जी जी। ओके, जो आयरन है दो तरह का होता है, एक होता है हीम आयरन और दूसरा नॉन हीम आयरन। तो अगर आप चिकन और अंडा रख रहे हैं तो आपका जो आयरन है वो पूरा होना चाहिए। अगर नॉन हीम आयरन है जैसे पालक है या खजूर है, आप इसके साथ कोई विटामिन सी का कमी, जैसे पालक के ऊपर नींबू डाल के लिया तो वो ऐसा आयरन बन जाता है जो कि चिकन में होता है, तो उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप सप्लीमेंट्स या वो नहीं लेना चाहते, आप क्या कर सकते हो, पालक के ऊपर नींबू डाल के ले लें, एक खजूर के साथ एक संतरा ले लें। अगर आप ओट्स लेते हैं तो ओट्स के साथ थोड़ा सा ऑरेंज जूस ले लें, इससे आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी। और फिर भी लाइक आपको डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि आपको कमी इतनी होती है कि जो हम आपकी डाइट से पूरी नहीं होती है, तो फिर उस सिचुएशन में आपको सप्लीमेंट चाहिए होगा। और फिर आप फैमिली डॉक्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो अगर आपको डाइट से पूरा नहीं मिल रहा। सो प्लीज कंसल्ट अपने फैमिली डॉक्टर से करें। हाँ जी अंबर जी, आप क्या एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, जैसे अभी आपने कहा ना कि अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो समटाइम्स ये भी होता है कि आयरन को जो है वो 2 खानों के या तो बीच में लीजिए और उसके साथ में ऑरेंज जूस, विटामिन सी किसी भी फॉर्म में ले लें तो उससे वो आयरन बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। तो अगेन डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद कॉन्स्टिपेशन की जो भी स्ट्रेटजीज आप कर सकते हैं और पानी का मिकदार बढ़ा दें डाइट में। तो ये 2-3 तरीकों से अपनी बॉडी की हेल्प करें ताकि आपकी बॉडी को इनफ आयरन मिल जाए। कैन आई आस्क एज अ डायबिटीज एजुकेटर क्वेश्चन कि ऑरेंज जूस जरूरी है कि क्या उसकी जगह पे हम ऑरेंज ले सकते हैं? ऑरेंज बेटर रहेगा। ऑरेंज इज बेटर। जी जी। सो जो मैं खुद बहुत बिलीव रखती हूँ कि पीने की वजह आप कुछ खा लें, तो आप जो अपनी आयरन पिल लेनी है उसके साथ ऑरेंज ले लें इंस्टेड ऑफ ऑरेंज जूस लेने की। Yeah. That is absolutely. I was thinking of water and vitamin C together. So, पानी भी बढ़ाइए और साथ में विटामिन सी ऑरेंज को भी लीजिए और अपनी आयरन का सप्लीमेंट खाइए साथ में। उसके अलावा अगर आप आयरन का ले भी रहे हैं सप्लीमेंट तो कैल्शियम के सप्लीमेंट के साथ कंबाइन ना करें, नहीं तो खराब हो जाएगा उसका, वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। तो मतलब कि जो विटामिन है डिफरेंट वो इंटरेक्ट कर जाते हैं। हाँ जी। हाँ जी, उम्मीद है कि आपकी हेल्प हुई होगी हमारे आंसर से। तो अभी हम नेक्स्ट कॉल पे चलते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। हाँ जी, थोड़ा योर हेल्थ टीवी शो विच स्वागत है जी। हेलो, आई थिंक अपनी कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। तो हम विटामिन डी पर थे और हमने ओवरडोज की बात की है, तो जो उसका कंक्लूजन यही निकला है कि आप अपनी प्लीज़ फैमिली डॉक्टर के पास जाकर अपना ब्लड वर्क करवाएं और उनसे पूछें कि आपको ये सप्लीमेंट चाहिए और वो आपको कितनी क्वांटिटी में चाहिए। तो अगर हम आगे बात करें कैल्शियम की, क्योंकि जब हमारी बोन हेल्थ की बात आती है तो कैल्शियम की बात पहले आती है, विटामिन डी की बात हम बाद में करते हैं। तो कैल्शियम क्या होता है और हमारी बॉडी को ये क्यों चाहिए होता है मनमीत जी?
जी, सो कैल्शियम एक मिनरल है जो कि बोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे ये देखिए, हमारी जो बोन्स हैं वो ऐसे हार्ड होती हैं बिल्कुल, कि अगर हम इसको तोड़ना चाहिए नहीं टूटेंगी, लेकिन आपको दिन में, एक दिन में 1000 मिलीग्राम जो है कैल्शियम चाहिए होता है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, स्लोली वो बोन से निकालता रहता है, तो निकलते निकलते वो ऐसी बोन बन जाती है 8-10 साल बाद, और जिसको हम ऐसे करें तो वो टूट जाएगी, राइट। सो वो ये सॉफ्टनिंग जो बोन की एक दिन में नहीं होती, 10-15-20 साल लग जाते हैं, जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसके लिए कैल्शियम लेना बहुत जरूरी है जी। तो हमारी 2 कॉल्स अभी लाइन फ्लैश कर रही है, तो हमें वो कॉल लेनी चाहिए। हाँ जी, थोड़ा योर हेल्थ टीवी शो ਵਿੱਚ स्वागत है जी। हेलो हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ऑन एयर हो जी? थोड़ा हेलो। हाँ जी, आप प्लीज टीवी की आवाज बंद कर दें। हाँ जी, थोड़ा योर हेल्थ टीवी शो ਵਿੱਚ स्वागत है जी। हेलो अभी हेलो, थोड़ा योर हेल्थ टीवी शो ਵਿੱਚ स्वागत है जी। हेलो जी। हाँ जी, थोड़ा योर हेल्थ टीवी शो ਵਿੱਚ स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, हाँ जी, थोड़ी आवाज आ रही है। मैं ताजीमन बोल रहा हूं। हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ योर हेल्थ टीवी ਵਿੱਚ बहुत स्वागत है जी। रात दूसरी दी आवाज। हाँ जी, ਮੈਨੂੰ थोड़ी आवाज आ रही हैगी आ। हाँ जी, थोड़ा क्वेश्चन। हेलो हेलो। हाँ जी, ਮੈਨੂੰ थोड़ी आवाज आ रही है। हेलो हाँ जी हेलो हाँ जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ? हाँ जी आवाज आ रही है जी। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन पूछो। दोबारा मेरी आवाज ही वापस आ रही है जी। दोबारा करा फोन जी। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰ ਦਿਓ। वो कर दीजिए, मेरी आवाज वापस आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, टीवी ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं अवतार चीमा बोल रहा जी। हाँ जी, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ क्वेश्चन पूछना चाहोगे? मैं शुगर के बारे पूछना सीगा जी। 2 साल का शुगर है मैनू, मैं कोई दवाई नहीं ले रहा, मैं वैसे ही डाइट ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿਤੇ? ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਬਲੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੱਖੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਫੋਰਮਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹੀ फैमिली डॉक्टर ने पूछे, कहते ਜਦੋਂ ਵਧੂਗੀ ਫਿਰ ਲੈਣੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਲੱਡ ਵਰਕ ਕਰਵਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈਣਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਡਾਕਟਰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਧੂਗੀ ਫਿਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਵੀ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी, थैंक यू। हाँ जी, थोड़ा योर हेल्थ टीवी शो में स्वागत है जी। नेक्स्ट कॉल। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। ਮੇਰੇ ਜੀ 2 ਸਵਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ? ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਕਮਨ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਸ਼ੂਗਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਏਜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦਾ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਫੁੱਟ ਬਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਿਫਾਈਨਡ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਂਡ 'ਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਡ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਡ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਯੰਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਵੇਟ ਹੋ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 40 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਕਿ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ 40 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। हाँ जी, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਰ ਹੈਲਥ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਬੋਡੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਖਾਣੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਪੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮਨਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ weight gain ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ 22 ਮਈ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਈਮੇਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ weight ਘਟ ਜਾਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲਦੀ ਈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਈਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਖਾਓਗੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲਵੋਗੇ, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਲਵੋਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਚ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ weight ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਲਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ੱਕਰ, ਖੰਡ, ਕੁਕੀਜ਼, ਆਪਣੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ, ਸਮੋਸੇ, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਈ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ weight ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਕੰਸਰਨ ਕਰਕੇ weight gain ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਰ ਹੈਲਥ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਲਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਮਨਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ? ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਰਿਚ ਫੂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਕੱਪ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 3 ਕੱਪ ਦੁੱਧ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕਿਮ ਜਾਂ 1% ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਲਕ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਬਰ, ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਡ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂ ਇਟ? कैल्शियम रिच फूड के लिए दूध और दही, पनीर, दूध से बने हुए कोई भी जैसे कैफेर या लस्सी या जो भी आप चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों में, सब्जियों में भी एक्चुअली कैल्शियम होता है, लेकिन समटाइम्स जो सब्जियों का कैल्शियम होता है वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता। तो इसलिए जैसे कि जो सबसे ईजीएस्ट ऑप्शन जो हमें कैल्शियम की दिखती है वो है दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें, क्योंकि उसका कैल्शियम बॉडी के अंदर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। और कनाडा के अंदर जितना भी मिल्क अवेलेबल होता है उसके अंदर विटामिन डी की फोर्टिफिकेशन होती है। तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑस्टियोपोरोसिस के लिए आपके डॉक्टर ने कहा विटामिन डी एंड कैल्शियम ऐड करो, तो वो आपको उससे हेल्प हो जाएगी। जहाँ तक डाइटरी नीड्स का है और ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे अभी मनमीत ने एग्जांपल दी थी बोन की, राइट? तो अब क्या होता है, जब ऑस्टियोपोरोसिस हैपन हो चुका होता है तो उस वक्त आपकी बोन वीक हो गई है एंड एट अ सर्टेन एज कैल्शियम जाके डिपॉजिट भी नहीं होगा उतना फास्ट जो कि यंग एज में होता है। तो इस वक्त बेस्ट यही है कि आपको फर्दर डैमेज को स्टॉप करना है और वो उसी सूरत में होगा कि आपका कैल्शियम इंटेक जो है एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में हो, जो कि 1000 मिलीग्राम टू 1200 मिलीग्राम पर डे है। इसको आपने खाने से करना है या सप्लीमेंट से करना है, लेकिन वो आपके मजीद डैमेज होने से आपको रोकेगा। हाँ जी मनमीत जी, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਬਰ ਐਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਪਲੀਮੈਂਟ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ ਆਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਤਲੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੋਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਉਹ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਨਮੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਓਮੇਗਾ 3 ਦੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਓਮੇਗਾ 3 ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸੋ ਓਮੇਗਾ 3 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਓਮੇਗਾ 3 ਫਲੈਕਸ ਸੀਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਲਨਟਸ, ਅਖਰੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਫਿਸ਼ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਅੰਬਰ ਜੀ, ਲੈਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਐਮਟੀ ਸਟਮਕ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? जो फैट के सप्लीमेंट्स हैं ओमेगा 3, वो बेहतर यही है कि खाने के साथ लें। खाली पेट लेने में समटाइम्स
GI डिस्कम्फर्ट हो जाता है या फिर कोई क्रैम्पिंग या ब्लोटिंग आपको फील हो सकती है, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, नॉट सेइंग कि ऐसा हो जाएगा। और बाकी जो दूसरे विटामिन हैं जैसे विटामिन सी या बी विटामिन लेते हैं वो खाने के दरमियान या बिना खाए भी लिए जा सकते हैं, लेकिन विटामिन ए, डी, ई, के अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो उसकी एक सजेशन है कि वो खाने के साथ लिया जाए। जी, सो अंबर आपका बहुत बहुत थैंक यू इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। सो आपने बोला कि जो फैट सॉल्युबल हैं वो आप खाने के साथ लें और जो दूसरे हैं तो फिर वो आप वैसे भी ले सकते हो। तो अगर हम बात कर रहे थे आयरन की, राइट, तो आयरन के कॉमन सोर्सेज क्या होते हैं हमारी डाइट में? आयरन के जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एकदम हमारे दिमाग में आते हैं वो है नॉन वेज आइटम्स जो हैं, जैसे कि मीट के अंदर होता है। इसके अलावा अगर नॉन वेज आइटम्स में मैं बात करूं तो बीन्स के अंदर आयरन बहुत मौजूद होता है, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के अंदर आयरन मौजूद होता है। मगर शुरू में मनमीत हमें बता रही थी कि आयरन के जो फॉर्म्स मिलते हैं, तो जो एनिमल सोर्सेज में आयरन मौजूद होता है वो बॉडी में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, लेकिन जो प्लांट सोर्सेज में होता है तो वो उतने अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होता, तो उसको हमें कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है। एंड आई एम 100% श्योर मनमीत इसमें ऐड करेंगे, लेकिन एक एग्जांपल के स्पिनच के ऊपर अगर लेमन जूस डालेंगे, राइट, सो दैट विल मेक इट अ कंप्लीट आयरन एंड इट विल एब्जॉर्ब इन द बॉडी एज सेम एज लाइक आयरन कमिंग फ्रॉम चिकन और एनी एनिमल सोर्स। वो उसकी अब्जॉर्प्शन इम्प्रूव कर देता है। जी, और अगर हम इंटरेक्शन की बात करें, जो हम विटामिन्स ले रहे हैं ये हमारी जो दूसरी मेडिकेशंस लेते हैं उसके साथ इंटरेक्ट करती हैं? बिल्कुल। कुछ विटामिन्स और कुछ मेडिकेशंस का आपस में एक ऑपोजिट रिएक्शन का कॉन्फ्लिक्ट होता है। जैसे कि एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि जो विटामिन के है वो बॉडी के अंदर क्लॉटिंग करती है, जैसे जख्म आ जाए तो उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, उसको हम क्लॉटिंग कहते हैं। तो विटामिन के उस फंक्शन को प्रमोट करता है बॉडी में। लेकिन कुछ लोग ब्लड थिनर्स पर होते हैं, जैसे वारफरिन के ऊपर होते हैं, तो अगर वो वारफरिन भी खा रहे हैं साथ में विटामिन बी के भी खा रहे हैं तो बेसिकली वो दो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दो किस्म के हैं जो एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रही हैं। सो अगेन प्लीज रेफर टू योर डॉक्टर, लेट योर डॉक्टर नो कि आप विटामिन के लेना चाहते हो, और अगर आप वारफरिन पर होंगे तो दे बोथ आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड टू ईच अदर। मतलब कि आपको अपने फार्मासिस्ट से बात करनी चाहिए या फिर अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि आप कौन से विटामिन मिनरल्स ले रहे हो। क्योंकि कई बार हम अब डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमसे पूछते हैं कि आप कौन सी दवाई लेते हो, हम दूसरी ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की मेडिकेशन के बारे में बता देते हैं पर विटामिन और मिनरल्स के बारे में हम नहीं बताते। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप ये भी इंफॉर्मेशन अपने डॉक्टर के साथ शेयर करें, इवन दो कि आपने डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं करके दी है पर आप ले रहे हो, पर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उनको पता हो। हाँ जी मनमीत जी, आप विटामिन इंटरेक्शन के बारे में कुछ और ऐड करना चाहती थी? एम्बर ने बहुत अच्छा बताया विटामिन के का, बट अगर कोई प्रेडनिजोन ले रहा है या कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिकेशन ले रहा है या कोई वेट लॉस की मेडिकेशन ले, उसमें जो है विटामिन डी और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन दोनों में इंटरफेयर करता है, तो उनको भी ध्यान देना चाहिए। जी ओके, अभी हमारे पास थोड़ा और टाइम है बाकी, तो हम फोलिक एसिड पे बात करना चाहेंगे। मनमीत जी बताएं कि फोलिक एसिड हमारी डाइट में क्यों इम्पोर्टेंट होता है और हम अपनी बॉडी को कैसे सप्लीमेंट कर सकते हैं इसके साथ? सो फोलिक एसिड अगर बॉडी में पूरा ना हो तो अनीमिया होने के चांसेस होते हैं, और जैसे बॉडी थकावट रहती है, काफ़ी ज़्यादा पेल रहता है, और एक दिन में 400 माइक्रोग्राम चाहिए होता है फोलिक एसिड। तो मतलब कि इसके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं हमारी डाइट में? और लाइक मैंने जो आप अगर सुनते हैं कि तो जो प्रेगनेंसी में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, क्या कि जो कंसीव करना चाहते हैं उनको भी ये उसकी सप्लीमेंट लेनी चाहिए? एक्चुअली इस पे जो रिकमेंडेशंस हैं वो, बिकॉज फॉलिक एसिड हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, तो जो डॉक्टर्स और ऑब्स की रिकमेंडेशन यहाँ पर यह है कि इवन व्हेन यू आर प्लानिंग टू गेट प्रेग्नेंट, आपको फॉलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन, ये प्रीनेटल विटामिन के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है प्री कंसीव, तो उसमें आपको ये लेना चाहिए ताकि आपकी बॉडी के अंदर फॉलिक एसिड के स्टोर्स इनफ हो। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगेन मनमीत इसमें ऐड करेंगी पॉइंट कि फॉलिक एसिड की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो डाइटरी सोर्सेज से उसको अकम्प्लिश करना
इतना ईजी नहीं है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू द अमाउंट दैट इज़ प्रेजेंट इन द फूड सोर्सेज। डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर मौजूद होता है फॉलिक एसिड, तो उस सूरत में इवन हम डाइटिशियंस भी जो हमने कहा था ना कि कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जहाँ सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो फॉलिक एसिड इज़ एक्चुअली वन ऑफ दोज बी विटामिन्स जहाँ पे हम सप्लीमेंट्स को इनकरेज करते हैं, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रेगनेंसी एंड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू लाइफ एज वेल। हाँ जी, क्या नीचे क्या ऐड करना चाहेंगे? जो फॉलिक एसिड है उसका अगर विटामिन्स में नेम देखें तो उसे फोलेट कहते हैं, जो फूड्स में मिलता है उसे फोलेट कहते हैं, और उसकी अगर सप्लीमेंटेशन है तो उसे फॉलिक एसिड कहते हैं। और ये डिफरेंस है इन दोनों में बेसिकली, और ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है, बॉडी में स्टोर नहीं होता, हो सकता है हमें इसकी सप्लीमेंटेशन आई मीन कुछ फॉर्म में जैसे एम्बर ने बोला है कि ज़रूरत होती है। जी, हमें 2 कॉल्स आ रही हैं तो हम कॉल की तरफ चलते हैं। हाँ जी, थोड़ा योर हेल्थ टीवी शो में स्वागत है जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। ਭੈਣ ਜੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ जी ਫੇਸ ਤੇ ਨਾ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵੀ ਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸਵੈਲਿੰਗ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਵੈਲਿੰਗ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਾਫੀ ਫੇਸ ਸੁੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ। जी जी ਅਸੀਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬੈਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹੀ ਟੈਸਟ ਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਬਟ ਲਾਈਕ ਮੇਬੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬੈਸਟ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। हाँ जी, थोड़ा यूर हेल्थ टीवी शो में स्वागत है जी। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। सत श्री अकाल जी। ਮੈਂ ਡਾਈਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਮੇਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਆ। जी जी ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜੀ ਡਾਈਟ, ਕੀ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਡਿਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। जी हाँ जी, लेकिन ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਰਲ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ नहीं होएगा कि ਅਸੀਂ डिटेल ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। हाँ जी अमर जी, ਤੁਸੀਂ ਕੀ रेकमेंड करोगे? अगर जैसे अभी आपको कोलेस्ट्रॉल का या बाईपास का करा है तो आपको अपनी डाइट के अंदर फैट को देखना होगा, तो किसी भी किस्म का सैचुरेटेड फैट अवॉइड कीजिए कम्प्लीटली प्लीज़। जो फैट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर उसमें मक्खन आ जाता है, ज़्यादा फैट वाला दूध आ जाता है, और इसके अलावा अगर आप पनीर को इस्तेमाल करते हैं जो कि हाई फैट है। खाना 3 टाइम पाबंदी से खाएं, बीच में 4 से 6 घंटे का वक्फा रखें, और कोशिश करें कि उसके अंदर सब्जियां ज़्यादा हों, लो फैट सोर्स ऑफ प्रोटीन हो, जैसे अगर दालें ले रहे हैं तो बिना तड़के के है, सब्जियां ज़्यादा हैं जो कम तेल में पकी हुई हैं, और साथ में एक रोटी, दही अगर ले रहे हैं तो कम फैट का, और साथ में कोई फ्रूट ले रहे हैं। ये मैं प्लेट मेथड एक्सप्लेन कर रही हूँ जो हमने शुरू से प्रोग्राम में आपको बताया था। लंच एंड डिनर में कोशिश करें कि थोड़ा बहुत ही सही प्लेट मेथड मौजूद हो, 80% 60% ऑफ प्लेट आपकी जो है वो उस मेथड पे फॉलो कर रही हो, और जो मेन है इस आपकी उसमें है कि आपको कोशिश करनी है कि लो ऑन सैचुरेटेड फैट्स, लो इन सोडियम एंड हाई प्रोटीन हाई फाइबर डाइट आप यूज़ करें। हाँ जी अमर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आंसर किया। मैं अभी आई वांट टेक दिस अपॉर्चुनिटी कि आप दोनों ने मेरा बहुत साथ दिया है इस न्यूट्रिशन सीरीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंबर और मनमीत। थैंक्स टू यू। हाँ जी, अपने को टाइम बस इन्ना ही सीगा, ते अगले हफ्ते थोड़े नाल जुड़नगे डॉक्टर हरप्रीत बजाज, जेड़े कि डॉक्टर बंसल दे नाल कैंसर स्क्रीनिंग दे उत्ते थोड़े कोई बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे अगले हफ्ते दिन सोमवार रात 7:30 बजे ऑन चैनल Y ऑन योर हेल्थ टीवी शो। थैंक यू। You are watching Channel Y. Channel Y, a South Asian Canadian channel. The biggest South Asian media group, Y Media. Y Media. Y Media has newspaper, midweek, radio, South Asian Pulse, television. You are watching Channel Y. Channel Y, a South Asian Canadian channel. Online, SouthAsianDaily.com, the biggest South Asian media group, Y Media. You are watching